Hello students, today I will discuss about the factor theorem and the remainder theorem. Okay, so first of all here remainder theorem. What is remainder theorem? As you know that when you divide something, remainder क्या होता है? Suppose that here it is 8 and when I divide it by 3 to the 6, here is 2 as a remainder. But if that 8 it is divided by, suppose that 2 or 4, you take 4 to the 8, then in that case remainder is 0. In that case we will say 4 is the factor of 8, and here we will say when 8 is divided by 3, 2 is a remainder. So without dividing, how we will find that? We will see here by the remainder theorem, and after that we will discuss the factor theorem. Okay children, so see what is here, that find the remainder when this polynomial is divided by this. So what you do, first of all you consider, let px or fx you can take. I am taking here px, x to the power 4 minus 3x square plus 2x plus 1. You consider it as a polynomial. You can take here fx also, because we have to represent in terms of x because it is given in x. If it is given in y, so we can take here y. Okay, now here it is given that it is divided by x minus 1. So you find the 0, मतलब इस वैल्यू को आपको डालना है, so that 0 कर देना है, and so that you take the value, means it is you take here, right, since x minus 1 you take 0, so that कि x का वैल्यू क्या आता है, तो 1 आ गया. Now what you do, you put this value in this equation, so you will get the remainder. So what you will do, therefore you put the therefore, you write here p, in place of x you write 1, and see it is 1 to the power 4 minus 3 into 1 square plus 2 into 1 plus 1. ठीक है, 1 to the power 4 it will give you 1 minus 3 into 1, 2 into 1 that is 2 plus 1. Now you solve it. 1 minus 3 plus 2 plus 1. I can solve that 2 plus 1 3 plus 1 4. So you can write here 4 minus 3 that is equal to 1. So 1 is the remainder. When we divide this polynomial with another polynomial x minus 1, we will get 1 as a remainder. But suppose that if this remainder is 0, अगर ये 0 आ जाता, in that case हम लोग बोलते कि that x minus 1 is a factor of polynomial. So we will see in this one. ठीक है, what is the here given, that if x minus 2 is a factor of this polynomial, find the value of a. मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ये फैक्टर है, ठीक है, तो आपको बताना है कि what is the value of a. So already I told if this value is 0, in that case you can say this one is the factor. So यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सेम वे फॉलो करेंगे, प्रोसीड करेंगे. लेट px और fx जो भी लेना आप ले सकते हो, ठीक है. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a, ठीक है. एंड हियर इट इज डिवाइडेड बाय दिस वन. यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस लाइक दिस x माइनस 2 इक्वल टू 0. आप 0 इसका फाइंड कर लो, दैट इज x इक्वल टू 2. तो आफ्टर दैट व्हाट यू विल राइट हियर, सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ whom, px. ठीक है, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px. इसका मतलब क्या हो गया कि p में जब आप वैल्यू 2 का डालोगे तो इट विल बी 0 आ जाएगा वो वैल्यू, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे, देन वी पुट हियर द वैल्यू 2, x का वैल्यू यहाँ डालेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 0. 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस इट विल बी 14 प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है. इसके बाद दैट व्हाट वी विल डू, इट इज 0 हियर, दिस इज माइनस 10 प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 0. सो 2a इक्वल टू 10, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5. मीन्स 2 विल गो दिस साइड एंड इट विल डिवाइडेड एंड वी गेट 5. means the value of a will be 5. Like
we will solve such type of questions. ठीक है. Now in this question, as I told that fx is given here and it is divided by x minus 2, remainder is 0. Here is the remainder 0, and same thing when it is divided by this one, the remainder is this one. ठीक है. So first of all what we will do, you write here fx, that is x cube plus ax square minus bx minus 8. ठीक है. अब क्या करेंगे, पहले जीरो पहले वाले वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x माइनस 2 दैट इज 0, तो क्या हो गया x इक्वल टू 2. एज आई टोल्ड कि पहले जीरोज निकाल लेंगे, मतलब x का वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, जिससे डिवाइड करना है. अब क्या करना है, इट इज गिवन कि 0 आएगा रिमाइंडर, मीन्स आप यहाँ लिखोगे व्हेन fx is divided by x minus 2, the remainder is f2, means that you can write 0 आप यहाँ लिख दो, इसके बाद दिखाओ दैट इज f2, मतलब आप जो 2 वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए. ठीक है. अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं. मीन्स वी पुट द वैल्यू हियर, इट विल बी क्यूब फिर a इंटू 2 स्क्वायर माइनस b इंटू 2 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0. जो पॉलिनोमियल है इसमें हम लोग वैल्यू को डाल देंगे. ठीक है. एंड सॉल्व इट. इट इज 8 2 2 जा 4a माइनस 2b माइनस 8 इट इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब ये देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में 0 हो गया. 4a माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 0. आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2a माइनस b इक्वल टू 0. देयरफॉर यू कैन राइट 2a माइनस b इट इज इक्वल टू 0. यू टेक इट इक्वेशन 1. ठीक है. अब इसमें हम लोग सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 रिमाइंडर इज माइनस 30. तो हियर यू हैव टू राइट सिंस x प्लस 1 0, इससे x का वैल्यू आप निकाल लो माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 एंड वी विल पुट द वैल्यू. ठीक है. यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन fx is divided by x plus 1, the remainder is, what is remainder, minus 30. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल राइट therefore f माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 30, इम्प्लाइज साइन डालिए और चुपचाप जो वैल्यू है यहाँ पे डाल दीजिए. ठीक है. तो इट इज माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस a इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस b इंटू माइनस 1 माइनस 8 इट इज इक्वल टू माइनस 30. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस भी करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस b माइनस 8 इट इज इक्वल टू माइनस 30. ठीक है. तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू माइनस 30 प्लस 9, मतलब a प्लस b दैट इज इक्वल टू माइनस 21. इट टेक इट इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. ठीक है. देखो यहाँ पे a माइनस बी आया, या तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और लाइक दिस जैसे मैं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे सॉल्व. ठीक है. लाइक दिस वी विल सॉल्व दैट. देखो 2a हियर व्हाट यू डू 1 प्लस 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. इससे क्या होगा b और b जो है कैंसिल हो जाएगा हमारा. ठीक है. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर 2a माइनस b इट इज इक्वल टू 0 और a प्लस b दैट इज इक्वल टू माइनस 21. तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया क्योंकि 0 आ जाएगा. इट इज़ 3a इक्वल टू माइनस 21. इससे आप बता दो a इक्वल टू माइनस 7. a का वैल्यू आ गया माइनस 7. अब इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू माइनस 7 इन 2 थोड़ा आसान है उसमें डाल देते हैं. तो a का वैल्यू माइनस 7 प्लस b इक्वल टू माइनस 21. तो b इक्वल टू क्या हो गया माइनस 21 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू माइनस 14. ठीक है. देयरफॉर हेंस
you can write a equal to -7 or b equal to -14. So this is the answer. Like that we can solve such type of question. Again I am telling, remainder and factor theorem both are similar, only of difference how you have to write. रिमाइंडर में 0 डाल दो या वैल्यू डाल दो, अगर रिमाइंडर 0 डाल लेते हैं तो वो फैक्टर हो जाएगा.